Hello everyone and welcome to Mentor's Galaxy. I am Pratiksha Roy, your chemistry mentor. आज से हम शुरू करने वाले हैं the chapter series of Mentor's Galaxy, where we will discuss each chapter important for your board exam and competitive exams in detail. आज का हमारा चैप्टर है some basic concepts in chemistry, which is the first chapter of class 11. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड इस चैप्टर से आप बहुत सारे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इस चैप्टर से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं स्पेशली ऑफ स्टोइशियोमेट्री एंड फ्रॉम द मोल कॉन्सेप्ट which we will learn in our successive classes. So today is the first lesson of some basic concepts in chemistry and we will start from the basic topics which is included in your syllabus. So let us begin. Before beginning the chapter, can we answer these questions? Do gas and vapor have the same meaning? मतलब जो गैस है और जो वेपर है क्या इनका मतलब सेम होता है या फिर यहाँ पे कुछ डिफरेंस है? How can oil and water be separated? We know that oil and water are immiscible liquids. ये दोनों liquids mix नहीं होते, लेकिन अगर आपने ऑयल को पानी में गिरा दिया, can you separate it? Also, can you convert 50 degrees Celsius into Fahrenheit and Kelvin? You may know the answer to these questions or you may not know. But do not worry. After today's video, you can answer all these questions. So let us see the answer of these interesting questions in today's lesson. आज का हमारा पहला लेसन है and the contents are matter and its nature, concept of atom, molecule, element and compound, mixtures, properties of matter and measurement of physical properties. आज हमारा पहला लेसन है ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री एंड वी विल कवर ऑल दीज टॉपिक्स इन टुडेज लेसन. These are very basic topics and you might already have an idea, but since it is included in your syllabus, so I will discuss them in detail in a simple and a fun way. Let us begin. So we are studying some basic concepts in chemistry, right? So we must know what is the definition of chemistry. कहीं ऐसा ना हो कि किसी ने हमसे पूछ लिया कि what is chemistry और हम blank हो जाए. So before starting this chapter, we must know the simple definition of chemistry. Chemistry is the study of matter and its interaction. बहुत ही simple definition. मतलब chemistry में हम क्या study करते हैं? हम matter के बारे में study करते हैं. एंड दो मैटर एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं हम उसको स्टडी करते हैं. सो दिस इज अ वेरी सिंपल डेफिनेशन. सो नाउ इफ यू इलाबोरेट दिस डेफिनेशन, इस डेफिनेशन को अगर हम थोड़ा बेटर तरीके से समझना चाहते हैं, then chemistry is the science of molecules and atoms. Basically matter is made up of molecules or atoms. Molecules are made up of atoms. तो आप ये भी कह सकते हैं कि matter is made up of atoms. So chemistry is the science of molecules and their transformations or reactions. हमको पता है जो केमिकल रिएक्शंस करते हैं ये मॉलिक्यूल्स आपस में, उसको हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं. So chemistry is the science or the study of atoms and molecules and their reactions. So now we need to learn all about matter. So what is matter? Matter is anything that occupies space and has some mass. मतलब मैटर कुछ भी हो सकता है एज लॉन्ग एज इट हैज सम वॉल्यूम. ऑक्यूपाई स्पेस बोले तो वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करना. दैट मीन्स मैटर हैज टू बी समथिंग विच हैज सम वॉल्यूम एंड हैज सम मास. मतलब उसका कुछ वजन होना चाहिए एंड इट मस्ट ऑल्सो हैव अ वॉल्यूम. सो मैटर इज एनीथिंग दैट हैज अ वॉल्यूम एंड अ मास. So matter can be classified into two parts. One is physical state and the other is chemical composition. Physical state मतलब आप जिस matter को
आंखों से देख सको या फिर समझ सको। हमारे 3 फिजिकल स्टेट्स होते हैं ऑब्वियसली, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, विच वी विल स्टडी। एंड केमिकल कॉम्पोजिशन इज उनके अंदर जो है मैटर किससे बना है, एटम से, मॉलिक्यूल से, कैसे बना है, उसको हम देखेंगे केमिकल कॉम्पोजिशन में। So matter can be classified into physical state and chemical composition. So let us see the physical state first. Physical state is the physical form of any matter under constant conditions of temperature and pressure. ये एक बहुत ही कॉमन नॉलेज है, ये आप ऑलरेडी जानते हो कि अगर हम टेम्परेचर या फिर प्रेशर को चेंज कर दे तो मैटर का जो स्टेट है वो चेंज हो जाता है। अगर हम कोई सॉलिड को हीट करते हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट तक तो वो मेल्ट करके लिक्विड हो जाता है, उसको फर्दर हीट करते हैं तो वो गैस बन जाता है। सो टू डिटरमाइन द फिजिकल स्टेट ऑफ एनी मैटर वी हैव टू कीप द टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस कांस्टेंट, अदरवाइज द फिजिकल स्टेट कैन change. So this is a very common knowledge. We all know that physical states, there are three main physical states, which is solid, liquid, and gas. Examples you can see in this picture: solid you can think as ice, liquid you can think as water, and gas, we cannot observe gas, but you can see water vapor in this diagram. So it is an example of a gas. Or a better example of a gas is hydrogen, nitrogen, जो भी हमारे कॉमन गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड, दीज आर ऑल गैसेस। सो यही तीन है हमारे मेन फिजिकल स्टेट्स, and obviously they can be converted to each other if you change the conditions of temperature and pressure. इसलिए किसी भी मैटर के फिजिकल स्टेट को जानने के लिए हमको कांस्टेंट कंडीशन मेंटेन करना होगा, वरना वो स्टेट चेंज हो जाएगा। सो वी हैव सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यू ऑलरेडी नो दिस, बट दिस इज जस्ट अ रीकैप। अब हमारा जो पहला सवाल था हमारे लेसन के स्टार्टिंग में हमने देखा था कि व्हाई इज इट कॉल्ड गैस एंड व्हाई नॉट वेपर। तो अगर मैं यहाँ पे गैस की जगह यहाँ पे वेपर लिख देती, लेट मी राइट इट, अगर मैं वेपर लिख देती तो क्या ये सही रहता? बिकॉज वी नो दैट गैस, गैस का जो मीनिंग है, वेपर का जो मीनिंग है, वो दोनों सेम चीज समझाती है, बट आर दे एक्चुअली द सेम? So now let's see the answer to that first question. The gas is a substance that exists in the gaseous state at room temperature. A gas is a substance or a matter that exists in the gaseous state at room temperature. मतलब it is a type of matter जो normally gaseous state में रहते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हो गए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। You are breathing in a gas which is oxygen, which is normally present in our atmosphere at room temperature, and you are exhaling carbon dioxide, which is also a gas. So something which is normally in the gaseous state is called a gas. So then what is vapor? A vapor is the gaseous form of a substance that is typically a liquid or solid at room temperature. मतलब अगर आप किसी सॉलिड सब्सटेंस को या फिर किसी लिक्विड सब्सटेंस को आप हीट करेंगे तो जब वो गैसियस स्टेट में जाएगा उसको हम कहेंगे वेपर। उसको हम गैस क्यों नहीं कहेंगे? व्हाई वुड इट बी रॉन्ग? बिकॉज इट वाज नॉट ओरिजिनली इन द गैसियस स्टेट। वो इधर सॉलिड था या फिर लिक्विड था, हमने उसको हीट दिया, हमने उसको प्रेशराइज किया कि तुम अपना स्टेट बदल दो, इसलिए वो बदल के गैस हो गया, बट ओरिजिनली ही वाज नॉट गैस। We forced that state of matter to go into the gaseous state, and that is why it is called vapor. So very famous example of vapor is water vapor. हम कभी भी water gas नहीं कहते. Water gas has a different meaning. Carbon monoxide plus H2 is known as water gas. बट वाटर वेपर क्यों कहते हैं? क्योंकि वाटर नॉर्मली लिक्विड फॉर्म में रहता है। इफ यू कूल द वाटर इट बिकम्स आइस, इफ यू हीट द वाटर इट बिकम्स वाटर वेपर एंड नॉट वाटर गैस। सो वाटर वेपर इज अ वेरी वेरी common and very important example to understand the difference between gas and vapor.
गैस के एग्जांपल्स है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, लेकिन वेपर के एग्जांपल्स है वाटर। ऑल्सो आपने नैप्थलीन बॉल्स देखे होंगे, आप ऐसे सॉलिड बॉल्स रहते हैं जो आप फ्रेशन करने के लिए वार्डरूम में डालते हो। आफ्टर सम टाइम इट ऑल्सो गोज इन टू द गेशियस स्टेट, डायरेक्टली होता है, सब्लिमेशन होता है उनका। सो यू कैन कॉल इट एज नैप्थलीन वेपर्स। ऑल्सो सोडियम वेपर्स, एक प्रकार का लैम्प होता है जहाँ पे सोडियम के वेपर यूज होते हैं। सोडियम इज अ सॉलिड, व्हेन यू हीट इट इट गिव्स आउट द गेशियस, इट गोज इनटू द गेशियस स्टेट एंड इट बिकम्स वेपर। सो वेपर मतलब जो ओरिजिनली गेशियस फॉर्म में नहीं रहता, जिसको आप फोर्स करते हो, और गैस है जो ओरिजिनली गेशियस स्टेट में रहता है। नाउ व्हेन समवन आस्क्स यू, कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर, यू कैन कॉन्फिडेंटली आंसर। gas and vapor, they mean the same thing. Basically they indicate matter in the gaseous state, in the gaseous form, but they are different because gas is originally in the gaseous form and vapor is made to go into the gaseous form from solid or liquid. So this is a very important point that you should remember. So now let us see some properties of solid, liquid and gas, which are the three physical states of matter. Solids have a definite shape and volume. किसी भी सॉलिड के बारे में आप सोच सकते हो, बीट आइस, बीट एनी बुक, एनी टॉय दैट यू हैव, इट इज अ सॉलिड, इट हैज अ स्पेसिफिक शेप, इट हैज अ स्पेसिफिक वॉल्यूम। एक शेप रहता है, मास रहता है, वॉल्यूम रहता है, एंड दैट इज अ सॉलिड। इट हैज स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस एंड लीस्ट इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। I think you already have an idea about intermolecular forces and intermolecular space, but still I will discuss this one. But for now, you can think that solid has a definite mass, definite shape and volume. Liquid does not have any definite shape, but it has a definite volume. ये भी आपको पता है. Let's take the example of water. वाटर को आप ग्लास में रखो, एक बोल में रखो या फिर एक बकेट में रखो, तो इट चेंजेस इट्स शेप अकॉर्डिंग टू द कंटेनर. इट डज नॉट हैव अ शेप, बट उसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा. अगर आप एक ग्लास पानी को एक बड़े से बकेट में डाल दो, वो बकेट का एक छोटा सा पोर्शन ही कवर करेगा, बिकॉज इट्स वॉल्यूम विल बी द सेम, बट शेप उसका चेंज होता है. इट हैज वीक इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस एंड हैज इंटरमोलिक्यूलर स्पेस, जिसकी वजह से इसका डेफिनेट कोई शेप नहीं है. जितना इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा और इंटरमोलिक्यूलर स्पेस कम होगा, उतना ही वो मैटर सॉलिड फॉर्म में रहेगा, उतना ही अच्छा उसका डेफिनेट शेप रहेगा, जो कि सॉलिड स्टेट में था, एंड लिक्विड में वो नहीं है. एंड फाइनली कमिंग टू गैस, इट हैज नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. कोई शेप तो है ही नहीं गैस का, कोई वॉल्यूम भी नहीं है. You can take a small bottle of perfume and you can just spray it in your room. After a while you will see कि पूरे घर में, पूरे कमरे में वो महक आ रही है, क्योंकि वो जो छोटे से वॉल्यूम में वो परफ्यूम था, अब वो पूरा स्प्रेड होके रूम का जो वॉल्यूम है उसको ऑक्यूपाई कर लिया है. सो गैस डज नॉट हैव एनी शेप, नीदर इट हैज एनी वॉल्यूम. It has very weak intermolecular forces and the highest intermolecular space. जैसे मैंने बताया था कि इंटरमोलिकुलर फोर्स जितना ज्यादा होगा और स्पेस जितना कम होगा, उतना वो मैटर सॉलिड होगा. लेकिन गैस का ना कोई शेप है ना कोई वॉल्यूम है, तो इनके बीच में, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है, जिसको हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, वो बहुत ही ज्यादा कम है. एंड उनके बीच में जो स्पेस है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए गैस किसी भी एरिया में, किसी भी वॉल्यूम में बहुत इजीली स्प्रेड हो जाता है. So these are the some simple characteristics of solid, liquid and gas, which I hope you already know. Now, if you see this animation, you can understand about the intermolecular forces and the intermolecular space. So these are the solid molecules. This is one molecule, this is another molecule. So this empty space between two molecules is the intermolecular space, जो कि सॉलिड के केस में बहुत ज्यादा कम है. मतलब दो मॉलिक्यूल्स सॉलिड में बहुत ज्यादा पास है. एंड सिंस दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, द फोर्स बिटवीन देम इज वेरी हाई.
So solids have a very strong intermolecular force and a very low intermolecular space. ये मॉलिक्यूल्स बहुत पास में है इसलिए वो ज्यादा मूव नहीं कर पाते. द मॉलिक्यूल्स आर वेरी रिजिड, दे आर लाइक कन्फाइंड इन रिजिडिटी, क्योंकि इनमें ना कोई स्पेस है मूव करने के लिए, इसलिए सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप एंड अ डेफिनेट वॉल्यूम. नाउ इन द केस ऑफ लिक्विड यू सी दीज आर द मॉलिक्यूल्स. इनके बीच में जो स्पेस है वो सॉलिड से काफी ज्यादा है, इसलिए आप देख सकते हो कि जो मॉलिक्यूल्स है वो ज्यादा अच्छे से मूव कर पा रहे हैं. सॉलिड में बहुत ही कम स्पेस है मूव करने के लिए, इसलिए वो मूव नहीं कर पा रहे, लेकिन लिक्विड में काफी ज्यादा स्पेस है, एटलीस्ट सॉलिड से ज्यादा स्पेस है मूव करने के लिए. दिस इज वाई लिक्विड डोंट हैव अ डेफिनेट शेप. लिक्विड सब्सटेंसेस कोई शेप नहीं होता बिकॉज द मॉलिक्यूल्स आर नॉट टाइटली बाउंड. ये मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं इसलिए उनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता. And obviously their force of attraction between the molecules is also less because now the molecules are at a distance. Distance जितना increase होगा, intermolecular space जितना ज्यादा होगा, intermolecular forces उतने कम होंगे. Lastly, we come to gas. As you can see, there is a lot of empty space. You can see the molecules going all over the place. आराम से घूम रहे हैं, बहुत सारा स्पेस है यहाँ पे. तो यहाँ पे एक एक मॉलिक्यूल के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है. And that is why the gases do not have shape, neither they have volume. They have a lot of intermolecular space and very less intermolecular forces. क्योंकि मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर है, they are not close to each other, so the force between them is also very less. So the intermolecular space in gases is very high, जिसकी वजह से उनका कोई शेप या फिर वॉल्यूम नहीं होता. You already know about this from your previous classes, but still this is just to clear your concept about intermolecular forces and intermolecular space, and they are inversely related. जितना ज्यादा space होगा force उतना कम होगा. And I hope the solid, liquid and gas diagrams are quite clear to you, and I hope you can understand about the intermolecular force and intermolecular space. So this was all about the physical state of matter. ये तीन फिजिकल स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस. उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं वो भी हमने देख लिया. नाउ वी विल मूव टू केमिकल कॉम्पोजिशन, कि एक मैटर जो होता है वो कैसे बना होता है, किससे बना होता है. व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ इज व्हाट केमिकल कॉम्पोजिशन टेल्स अस. Chemical composition refers to the type of atoms and their arrangement ratios in any matter which determines the overall properties. कि हाँ, एक मैटर सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, लेकिन ऑक्सीजन जो गैस है और नाइट्रोजन जो गैस है, क्या वो दोनों सेम है? Obviously they are not the same. One is oxygen gas which we breathe, which sustains life on this planet earth, and one is nitrogen which is important for plants to fix their food. तो दोनों है गैसेस लेकिन है बहुत ही डिफरेंट. व्हाई दे आर डिफरेंट? बिकॉज ऑफ द केमिकल कॉम्पोजिशन इज डिफरेंट. The type of atoms in oxygen is different from the type of atoms in nitrogen, and how they are arranged is also different. जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत ही ज्यादा पॉइजनस गैस है, क्योंकि ये ऑक्सीजन के लेवल्स को बहुत जल्दी हमारे बॉडी में डिक्रीज कर देता है. सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड में भी सेम एलिमेंट्स है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, बट इट इज नॉट एज हार्मफुल एज कार्बन मोनोऑक्साइड. तो एटम का जो अरेंजमेंट है उससे भी सारे प्रॉपर्टीज चेंज हो जाते हैं. The properties of matter are determined by chemical composition, which talks about the atoms, molecules, and their arrangement. So, to understand chemical composition, it can be divided into pure substance and mixture. Pure substance मतलब जिस substance में कोई मिलावट नहीं है, जो pure है, and mixture is something which you have mixed, जिसमें मिलावट है. So, pure substances are element or compound, and mixtures can be homogeneous mixtures or heterogeneous mixtures. So let us take each of these and let us study in detail. So first we will study about pure substances जिसमें कोई मिलावट नहीं है.
So now we will move to pure substances. Constituent particles of pure substances have fixed composition. इनका composition हमेशा fixed रहेगा. And the examples of pure substances are element और compound. मतलब इनका जो कॉम्पोजिशन है, इस कॉम्पोजिशन को आप चेंज नहीं कर सकते हो. इनका कॉम्पोजिशन जैसा है हमेशा वैसा ही रहता है. एंड सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज प्योर सब्सटेंसेस. Element is a pure substance made of only one type of atom. Very important point. Element is a single pure substance जिसमें सिर्फ एक टाइप के एटम होते हैं. मतलब if you take an element hydrogen, it will only have the atoms of hydrogen. It won't have any atom of oxygen, nitrogen, anything. Another element, sodium, you can take. It will only have sodium atoms. It won't have chlorine atoms. It will not have calcium atoms. तो जो एलिमेंट होगा उसी एलिमेंट के एटम से वो एलिमेंट बना है. कोई एक्स्ट्रा कुछ और एलिमेंट एटम नहीं है. ओनली वन टाइप ऑफ एटम. So these are some elements example. It is the simplest form of matter. मैटर का सबसे सिंपल फॉर्म है एलिमेंट, जो कि बना है सिर्फ एक टाइप ऑफ एटम से. आप अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड मैटर के बारे में सोचो, जैसे कि मे बी यू आर लुकिंग एट योर स्क्रीन, योर फोन स्क्रीन इज ऑल्सो अ मैटर, बट इट इज मेड अप ऑफ सो मेनी थिंग्स. ग्लास का यूज हुआ है, कुछ और केमिकल्स यूज हुआ है, अडेसिव यूज हुआ है उसको स्टिक करने के लिए. इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म ऑफ मैटर, बट द मोस्ट सिंपल फॉर्म ऑफ मैटर इज एलिमेंट, जो सिर्फ एटम से बना होता है, वो भी सिर्फ वन टाइप ऑफ एटम. एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय केमिकल रिएक्शन. एलिमेंट को आप किसी भी केमिकल रिएक्शन से आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते. एक एलिमेंट जैसा है वो वैसा ही रहेगा. मतलब इट दे आर नॉट अफेक्टेड बाय केमिकल रिएक्शन. मतलब सोडियम को आप नॉर्मल केमिकल रिएक्शन से कुछ तोड़ के कुछ और बना नहीं सकते. फॉर दैट यू हैव टू डू मोर कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस लाइक न्यूक्लियर रिएक्शंस और समथिंग. बट विथ केमिकल रिएक्शन एलिमेंट्स कैनॉट बी ब्रोकन डाउन and they occupy a fixed position in the periodic table. They are the simplest form of matter and elements को arrange करके ही हमने periodic table को बनाया है. So it is a pure substance with one type of atom and the simplest form of matter. कुछ examples, oxygen, sodium, noble gases, hydrogen, fluorine. आप अपने periodic table को देख लीजिए, वहां पे जो भी सारे नाम है सारे के सारे वो elements ही है. So this is the first pure substance which is element. Now we see what is compound. Compound is composed of two or more elements in a fixed ratio. मतलब एलिमेंट था सिंपल, सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ मैटर. अगर आप दो या फिर उससे ज्यादा एलिमेंट को कंबाइन कर दे एक फिक्स्ड रेशियो में, जैसे जैसे कंबाइन करने से नहीं होगा, अगर एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करे तो ही आपका कंपाउंड बनेगा. The atoms of same or different elements combine to form molecules. मतलब फर्स्ट हमारा बेसिक था एटम. आप एटम्स को कंबाइन कर दीजिए, बन जाएगा आपका मॉलिक्यूल. एंड ये सारे मॉलिक्यूल्स मिला के आपका बनाता है कंपाउंड. सो दिस इज बेसिकली द चेन. देयर इज एलिमेंट. एलिमेंट इज मेड अप ऑफ एटम. If you combine the atoms of two or more elements, you will get molecules which will form compounds. They can be separated into constituent elements by chemical methods. एक कंपाउंड जैसे कि वाटर. Water is a compound. So if you do suitable chemical reactions, ये जो elements है hydrogen और oxygen, we will ultimately get these elements. Or salt, which is NaCl. If you again do suitable reactions, you will get the elements, which is sodium and chlorine. So एक compound को आप उसके constituent elements में break down कर सकते हो by the use of correct chemical methods, which was not possible in case of elements. So this is a very important point to remember. Properties are different than the constituent elements. Elements के जो properties रहते हैं, लेकिन compound का जो property रहता है वो काफी अलग होता है.
जैसे वाटर के केस में आप देख लीजिए, हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस फॉर्म में ही रहता है, लेकिन वाटर जो है वो है लिक्विड. सो द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट सेम एज दैट ऑफ द कंपाउंड. कंपाउंड बनने के बाद उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है. So compound is made up of two or more elements in a fixed ratio. Atoms combine करके molecules बनाते हैं and वही molecules compound में रहते हैं. Compound को आप separate कर सकते हो उनके elements में, और element का जो property रहता है वो compound के property से काफी अलग होता है. Some examples are water, carbon dioxide which is CO2, and oxygen gas also. Oxygen gas is a compound. This oxygen is an element. ये दो जो एटम है ऑक्सीजन के वो कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस बनाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. फॉर बेटर क्लैरिटी लेट अस कंपेयर द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. Atoms are the smallest unit of matter to exist independently. So atom is the most important unit of matter जो independently exist कर सकता है in the form of elements. क्योंकि हमारे जो नोबल गैसेस है वो किसी से रिएक्ट नहीं करते, वो एलिमेंटल फॉर्म में ही रहते हैं. So the atoms can exist independently and it is the smallest unit that can exist independently. जो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, वो एनर्जी के फॉर्म में वो रिलीज हो जाते हैं. बट एटम कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली in case of noble gases. So atoms are made of subatomic particles, protons, neutrons, electrons. We already know this. They hardly exist in free state and are highly reactive. Except noble gas, बाकी सारे जो elements है वो बहुत reactive है. उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो हम बाद में स्टडी करेंगे उसकी वजह से वो बहुत ही रिएक्टिव रहते हैं. वो एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, वो रिएक्शन करके कंपाउंड बनाते हैं और कंपाउंड फॉर्म में रहते हैं. जैसे सोडियम आपको एलिमेंटल फॉर्म में बहुत रेयरली मिलेगा, बट सॉल्ट इज अ वेरी वेरी कॉमन कंपाउंड विच इज अवेलेबल ऑलमोस्ट एवरीवेयर. So sodium is very reactive. It reacts with also reactive chlorine and it makes sodium chloride which is salt. So ये फ्री स्टेट में ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करते एक्सेप्ट नोबल गैसेस विच आर स्टेबल. मेंटेन्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट. एलिमेंट का जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो एटम्स ही मेंटेन करते हैं. नाउ लेट अस सी अबाउट द मॉलिक्यूल्स. ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल फोर्सेस. तब दो या फिर उससे ज्यादा एटम्स को जब आप केमिकल फोर्सेस के साथ उनको अटैच करके रखते हो तो बन जाता है हमारा मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल इज बेसिकली मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स. कैन बी मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स. सेम एटम्स हो सकते हैं जैसे H2 हो गया, O2 हो गया या फिर N2 हो गया, और इट कैन बी डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स लाइक वाटर और CO2. हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में सिर्फ हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन के ही एटम है, लेकिन वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के एटम्स है. So molecules can have same kind of atoms or different kind of atoms. They are less reactive and exist freely in nature. क्योंकि अब वो रिएक्टिव क्यों नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी एलिमेंट जो बहुत रिएक्टिव था वो रिएक्शन करके कंपाउंड बना चुका है. तो ये जो सारे कंपाउंड्स है वो स्टेबल है, वो शांति से फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं नेचर में. वाटर करता है, CO2 करता है, हम जो गैस एक्सेल करते हैं वो CO2 ही है, ऑक्सीजन ऑब्वियसली. So they are less reactive and they are the building blocks of compounds. बहुत सारे एटम्स मिला के एक बनता है हमारा एलिमेंट. वैसे कुछ एटम्स को लेकर बनता है हमारे मॉलिक्यूल्स. वैसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को अगर आप मिला दो तो बन जाता है हमारा एक कंपाउंड. So molecule is the building block of compound. You may already know this, but this was just for your recap. So this is a comparison or a study between atoms and molecules. कुछ डायग्राम्स देख लेते हैं हम, और भी ज्यादा हमको क्लियरली समझ में आएगा. तो ये कुछ एलिमेंट्स के एटम्स हैं. एक एटम का ये एक डायग्राम है. ऐसे कई सारे एटम मिलके एक एलिमेंट बनता है. सो फर्स्ट वी हैव हाइड्रोजन. इट हैज 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन.
सो इन इट्स एटम इट हैज 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन। फिर आता है हमारा ऑक्सीजन। वी हैव 8 प्रोटॉन्स 8 electrons and 8 neutrons in oxygen. Next we have carbon. Carbon has 6 protons, 6 electrons and 6 neutrons. And lastly we have sodium, which has 11 protons, 11 electrons and 12 neutrons. जब ये सारे हैं एटम्स, सिंगल एटम्स है, एलिमेंट्स के एटम्स है, जो बाद में रिएक्ट करके कोई कंपाउंड बना सकते हैं, लेकिन ये है एलिमेंट्स के एक एक एटम्स। इन्हीं एटम को अगर आप कंबाइन कर दो तो बन जाएंगे हमारे मॉलिक्यूल्स। जैसे वाटर बनाने के लिए हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन कर दिया, which will give us H2O. If you combine carbon and oxygen, it will give you CO2. So ये है इंडिविजुअल एटम्स। इन इंडिविजुअल एटम्स को जब आप एक दूसरे के साथ कंबाइन कर दो तो हमारे मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। जैसे ये एक हाइड्रोजन का एक एटम यहाँ पे है, हाइड्रोजन का दूसरा एटम है, ऑक्सीजन का एटम है। ये कंबाइन करके यहाँ पे वे कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। We will study about covalent bond in detail in the chemical bonding chapter. So they make covalent bond and now the water molecule is formed H2O. 2 H atoms and 1 oxygen atoms. Similarly यहाँ पे एक ऑक्सीजन का एटम है, दूसरा ऑक्सीजन का एटम है और यहाँ पे कार्बन का एटम है, तो बन गया हमारा CO2 which is carbon dioxide. तो ये हो गया हमारे सिंपल एटम्स which combine to make elements. And if 2 or more atoms of different elements combine, they will form molecules, जैसे कि हमारा water और carbon dioxide. So this was all about the pure substances, which is elements and compounds. Elements are made up of atoms and compounds are made up of molecules. Now we will move on to mixtures. मिक्सचर्स का क्या होता है, उनका कॉम्पोजिशन फिक्स्ड नहीं रहता है। प्योर सब्सटेंसेस में हमने देखा कि उनका जो कॉम्पोजिशन है वो हमेशा फिक्स्ड रहेगा, कि CO2 हमेशा CO2 ही रहेगा, कभी वो CO4 नहीं हो जाएगा या फिर C2O5 नहीं हो जाएगा, फिर वो मॉलिक्यूल चेंज हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड विल ऑलवेज बी CO2, बट मिक्सचर्स डू नॉट हैव फिक्स्ड कॉम्पोजिशन। दे आर मेड अप ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस। मतलब वो एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। whose particles may be present in any ratio. एलिमेंट्स में, एलिमेंट तो सिंगल था ही, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। कंपाउंड्स में भी एटम्स के रेशियो जो थे वो फिक्स्ड थे, लेकिन मिक्सचर्स में वो रेशियो अभी फिक्स्ड नहीं है। द कॉम्पोजिशन इज नॉट फिक्स्ड, इसलिए उसको हम कहते हैं मिक्सचर जिसमें मिलावट है, विच इज नॉट फिक्स्ड। यू कैन चेंज द रेशियो अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। बेसिकली इफ यू पुट शुगर इन योर टी और कॉफी, तो आपको जितना ज्यादा मीठा चाहिए होगा उतना ज्यादा आप चीनी ऐड करेंगे। इट विल बी अ मिक्सचर, बट यू कैन एडजस्ट द लेवल ऑफ चीनी, कि हमको ज्यादा मीठा खाना है, पीना है, तो हम ज्यादा चीनी डालेंगे। या फिर कुछ मिठाई अगर आप बना रहे हो तो जितना ज्यादा आपको मीठा चाहिए आप उतना ज्यादा चीनी डालोगे। So you can adjust the level of the sugar and it is ratio is not fixed. You are adjusting it according to your own needs. So it is a mixture where the ratio is not fixed. Mixtures are of two types, homogeneous and heterogeneous. So let us see the homogeneous mixture first. Components mix with each other completely and uniformly. मतलब जो आप मिक्स कर रहे हो दोनों चीज, वो एकदम पूरी तरह से एक दूसरे के साथ वो मिक्स हो जाते हैं, उसको कहते हैं आप होमोजीनियस मिक्सचर। मतलब आपको देखकर समझ में नहीं आएगा कि ये दोनों अच्छे से मिक्स नहीं हुए हैं, पूरा टोटली दे मिक्स विथ ईच अदर completely and uniformly. The mixture is in fixed proportion. Fixed proportions मतलब आप शायद आप पानी में अगर आप चीनी मिला रहे हैं, तो जितना ज्यादा पानी है उतना अगर आप चीनी मिलाते जाए तो एक टाइम के बाद ऐसा आएगा कि देयर इज नो मोर शुगर दैट इज डिसॉल्विंग। एक टाइम के बाद उसको सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं, उसके बाद अगर आप चीनी डालेंगे तो वो चीनी मिक्स नहीं होगा।
उस अमाउंट ऑफ वाटर के लिए उतना ही चीनी फिक्स्ड है। एक्स्ट्रा चीनी को अगर आपको मिक्स करना है तो आपको फिर से एक्स्ट्रा वाटर ऐड करना होगा। तो होमोजेनस मिक्सचर में प्रपोर्शन जो है फिक्स्ड है, रेशियो फिक्स नहीं है, लेकिन प्रपोर्शन जो है इतने पानी में हमको इतना ही चीनी मिक्स होगा, उसके बाद भी अगर हम चीनी डालते जाएंगे तो वो मिक्स नहीं होगा, हमको वाटर का अमाउंट इंक्रीज करना होगा। तो द प्रपोर्शन इन होमोजीनियस मिक्सचर इज फिक्स। सिंगल फेज मिक्सचर दैट इज कैनॉट बी डिस्टिंग्विश्ड विजुअली। तो व्हेन यू आर डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, जब आप चीनी को मिला रहे हो पानी में तो चीनी डिसॉल्व होके वाटर के साथ वो मिक्स हो रहा है, मतलब आप चीनी के जो दाने होते हैं, जो पार्टिकल्स है, उसको आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इसको कहते हैं सिंगल फेज मिक्सचर, की देख के आपको समझ में नहीं आएगा, जब तक आप वो पानी नहीं पियेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि उस पानी में चीनी है। इट विल लुक लाइक ऑर्डिनरी वाटर। सो सिंगल फेज मिक्सचर मीन्स इट कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड विजुअली, मतलब आप देख के उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। And components cannot be separated easily. होमोजेनियस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अगर आपको सेपरेट करना है तो आपको बहुत ज्यादा केमिकल रिएक्शन या फिर बहुत कुछ प्रोसेसेस करने होंगे जो इजीली सेपरेट वो नहीं होते। सो दिस इज ऑल अबाउट होमोजेनियस मिक्सचर। ये जो कंपोनेंट्स रहते हैं वो अपने आप में एक साथ बहुत अच्छे से मिक्स होते हैं, उनका प्रोपोर्शन फिक्स्ड रहता है, सिंगल फेज मिक्सचर बनाते हैं और उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते हो इजीली। एग्जाम्पल्स सॉल्ट एंड वाटर और sugar and water. Air, the air that we breathe it consists of all kinds of gases, जो रेशियो हम जानते हैं, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस रहता है, फिर ऑक्सीजन गैस रहता है, बाकी सारे गैसेस रहते हैं, लेकिन ये होमोजेनस मिक्सचर है। आप यहाँ का, अगर आप शहर का कोई ले लो एयर सैंपल एंड आप गांव से कोई एयर सैंपल ले लो, एक्सेप्ट फॉर द पोल्यूटेंट्स, द कॉम्पोजिशन ऑफ द gases of nitrogen oxygen they will always be fixed, so it's a homogeneous mixture. एंड एलॉयज, जो एलॉयज हम बनाते हैं जैसे कि आपका ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, as you can see you won't understand how the metals are mixed together, क्योंकि उनका प्रोपोर्शन हमेशा फिक्स रहता है। आपको देख के समझ में नहीं आएगा कि ब्रास में ये सारे एलिमेंट्स हमने मिक्स किए हैं या फिर ब्रॉन्ज में ऐसे ऐसे एलिमेंट्स हमने मिक्स किए हैं, बट इट इज अ मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स और मेटल्स, बट दे आर मिक्सड इन सच अ वे कि आपको देखकर समझ में नहीं आए। सो दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ होमोजेनस मिक्सचर। So if you see this diagram, a homogeneous mixture can look like this. Suppose you take out a part of this area. So this can be molecule 1 and this can be molecule 2. तो इस एरिया में अगर आप देखेंगे तो it has two purple, two green. Similarly, if you take from this area, it will also have two purple, two green. अगर आप सिर्फ इतना ही लेंगे, it will have one purple, one green. तो ये पूरा यूनिफॉर्म है, आप कहीं से भी कोई भी एक पोर्शन अगर आप निकाल ले तो आप देखेंगे कि जो पर्पल का जो अमाउंट है और जो ग्रीन का अमाउंट है उसका प्रपोर्शन हर जगह सेम है। यहाँ पे भी मतलब ये 1:1 में है रेशियो में। कहीं से भी आप अगर एक छोटा सा पोर्शन निकाल ले तो आपको 1:1 रेशियो में मिलेगा, मतलब ये यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ग्रीन का अमाउंट ज्यादा है, पर्पल नहीं है बिल्कुल भी, यहाँ पे सिर्फ पर्पल है ग्रीन नहीं है, ऐसा नहीं है। पूरे सिस्टम में इनका जो प्रपोर्शन है, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल है, यूनिफॉर्म है। So this is all about homogeneous mixture. So heterogeneous mixture is just the opposite of homogeneous mixture. Components are not uniformly distributed. ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं है, कहीं एक कंपोनेंट ज्यादा है, कहीं दूसरा कंपोनेंट ज्यादा है, यूनिफॉर्मली वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। The composition of the mixture is not fixed. वहां पे जो एक प्रोपोर्शन हमने फिक्स करके रखा था कि इतने पानी के लिए हमको इतना ही चीनी चाहिए, यहाँ पे कोई कॉम्पोजिशन फिक्स नहीं है, मतलब इट इज अ मिक्सचर ऑफ सच टू कंपोनेंट्स जिसका कॉम्पोजिशन हम फिक्स ही नहीं करते। सो द कॉम्पोजिशन इज नॉट फिक्स लाइक दैट ऑफ होमोजेनस मिक्सचर। डिफरेंट फेज मिक्सचर, विजुअल डिफरेंशिएशन इज पॉसिबल, मतलब आपको देख के ही समझ में आएगा कि कुछ मिलावटें हैं। इट इज लाइक इफ यू मिक्स सैंड पार्टिकल्स विथ राइस,
अगर आप राइस में सैंड पार्टिकल्स डाल दिए तो आपको देख के समझ में आएगा कि ये जो राइस पार्टिकल्स है, जो राइस ग्रेन्स है, उसमें तो सैंड के पार्टिकल्स है। दे आर डिफरेंट फेज मिक्सचर। उसको आप जितना भी मिक्स करो, जितना भी हाथ से मिक्स करो या फिर जो भी यूज करो, आपको हमेशा समझ में आएगा, देख के ही समझ में आएगा कि कुछ गड़बड़ यहाँ पे है। सो दिस इज होमोजेनस मिक्सचर एंड components can be separated very easily using physical methods. So if you see sand and rice, you will just उसको आप छान लेंगे, you will use a sieve. तो राइस को आप फिल्टर करके सैंड को निकाल देंगे। सो हेट्रोजेनस जो मिक्सचर होते हैं बहुत इजीली वो सेपरेट हो जाते हैं, उनका इतना ज्यादा टफ कुछ प्रोसेस हमको नहीं करना होता है लाइक होमोजेनस मिक्सचर, क्योंकि उनका कंपोनेंट डिस्ट्रीब्यूशन ही अनइक्वल है, कहीं कुछ ज्यादा है, कहीं कुछ ज्यादा है, कहीं कुछ कम है। सो इट कैन बी इजीली सेपरेटेड एंड द कॉम्पोजिशन इज ऑल्सो नॉट फिक्स। सो सम एग्जाम्पल्स आर वेरी फेमस ऑयल एंड वाटर, क्योंकि अगर आप पानी में तेल गिरा देंगे तो आपको देख के ही समझ में आएगा, बिकॉज द ऑयल विल फ्लोट अबव द वाटर। आपको देख के ही समझ में आएगा कि इसमें तो एक ऑयल का लेयर बन चुका है अलग से, जो पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है। सैंड एंड वाटर, ऑब्वियसली इफ सैंड इज नॉट मिक्सेबल विथ वाटर, अब जितना भी कोशिश करो सैंड को मिक्स करने के लिए पानी के साथ, वो कभी भी मिक्स नहीं है। सॉल्ट एंड शुगर, टेस्ट अलग है, साइज अलग है, तो उनको अगर आप मिक्स करोगे, दूर से आपको देख के मे भी समझ में ना आए कि कौन सा चीनी है कौन सा नमक है, लेकिन अगर आप टेस्ट करेंगे या फिर बहुत अच्छे से देखेंगे तो यू विल सी particles are different. Salt particles and sugar particles are different. So these are some very common examples of heterogeneous mixture. So if you see this diagram of heterogeneous mixture, so this can be component 1 and this can be component 2, or this can be oil and this can be water. जैसे नीचे पूरा वाटर ही है, अगर यहाँ से आप एक पोर्शन निकाल ले, somehow you will see that it only has water molecules. Similarly, if you take out any portion from the top layer, you will see it has only oil molecules. So they are not mixed together. So they are very different. Their composition is different. नीचे water ज़्यादा है, oil बहुत कम, ऊपर oil ज़्यादा है, water बहुत कम. So this is a heterogeneous mixture. Now we saw a question at the beginning of the lesson, how to separate oil and water. कि इन दोनों का separation हम कैसे कर सकते हैं. So there are some processes. You can use a separating funnel. Separating funnel में क्या होता है? It kind of looks like this. So अगर आप इस मिक्सचर को यहाँ पे डाल देंगे तो ऊपर जो है हमारा ऑयल का लेयर रहेगा और नीचे जो है वाटर रहेगा। तो आफ्टर सम टाइम आप देख पाएंगे कि जो ऑयल और वाटर है वो कंप्लीटली सेपरेट हो गया। आप ऑयल का लेयर अलग से देख पाएंगे और वाटर को भी अलग से देख पाएंगे। नीचे अगर आप एक बीकर रखेंगे, इस यहाँ पे एक एडजस्टेबल नॉब होता है, एक टैप सिस्टम होता है, इस टैप को अगर आप खोलेंगे तो ये जो वाटर नीचे है वो नीचे आना स्टार्ट करेगा। तो जब भी वाटर पूरा चला जाए, आप देख रहे हैं कि अब ऑयल ऑलमोस्ट निकलने वाला है, तो अगर आप यहाँ पे इस टैप को क्लोज कर दे तो यू विल ओनली गेट वाटर ओवर हियर and the oil will remain in the funnel and you can again take it out in a separate beaker. So this is a separating funnel which can be used to separate oil and water. कुछ और भी प्रोसेसेस रहते हैं, जैसे डिकैंटेशन प्रोसेस रहता है, और भी बहुत सारे प्रोसेसेस रहते हैं. You can use a separating funnel to use oil and water. So now if anyone asks you how to separate oil and water, you can confidently tell them कि हम एक separating funnel को use करके oil और water को अलग कर सकते हैं. So this was all about the mixtures, and homogeneous mixture whose composition is fixed and heterogeneous mixture whose composition is not fixed. Now we will study about the properties of matter. अभी तक हम सिर्फ मैटर के बारे में ही पढ़ रहे थे, जिसके थे फिजिकल स्टेट और केमिकल कॉम्पोजिशन.
फिजिकल स्टेट्स हमने देख लिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और केमिकल कॉम्पोजिशन में हमने प्योर सब्सटेंसेस देखे, एलिमेंट और कंपाउंड, और हमने मिक्सचर्स देखे जो है होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो मैटर का जो बात था वो कंप्लीट हम कर चुके हैं। अब मैटर के जो प्रॉपर्टीज है, व्हाट इज मैटर वी हैव कंप्लीटेड, नाउ वी आर मूविंग टू व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, कैसे प्रॉपर्टीज रहते हैं। तो एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज विच यू कैन सी एंड ऑब्जर्व, एंड एक रहता है केमिकल प्रॉपर्टीज which is not visible but it determines the interactions or the chemical reactions of matter. So first we have the physical properties. They can be observed visually or by using our senses. मतलब हम देख सकते हैं या फिर हम उसको फील कर सकते हैं, उसका जो प्रॉपर्टी है। मतलब इफ समथिंग इज वेरी हॉट यू कैन टच इट एंड यू विल फील कि वो गर्म है। इफ समथिंग इज वेरी लॉन्ग आप उसको देख के समझ पाएंगे कि ये चीज बहुत लंबी है। So it can be observed visually or it can be used felt by our senses. हमारे जो 5 senses है उसको हम यूज करके physical properties को we can observe. Composition of the substance must not change. Composition हमको change नहीं करना, सिर्फ हमको observe करना है। जो chemical identity है that should remain constant during the observation. मतलब अगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब हम सोडियम को ऑब्जर्व कर रहे थे, सपोज we were observing that sodium is a solid, sodium is flammable or it is very reactive. Suddenly वो सोडियम कहीं से रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बन गया। In that case it would be wrong because हम किसको ऑब्जर्व कर रहे थे, सोडियम का। इसका जो प्रॉपर्टी है और सोडियम क्लोराइड का जो प्रॉपर्टी है दे आर डिफरेंट, दे आर डिफरेंट। तो अगर हम सोडियम को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमको सोडियम को ही ऑब्जर्व करना होगा। इसका कोई अगर केमिकल चेंज हो जाए बीच में देन इट विल बी रॉन्ग, बट केमिकल कॉम्पोजिशन शुड रिमेन सेम। कुछ एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, कलर, कि किसी सब्सटेंस का क्या कलर है, किसी एलिमेंट का कोई स्पेसिफिक कलर है कि नहीं। ओडर, ओडर मतलब स्मेल, स्मेल, हार्डनेस, whether that material is soft or is it hard, boiling point, melting point, mass, length, is it a very heavy, like metals जो होते हैं बहुत heavy होता है compared to non metals or metalloids, length, उसका length कैसा है। these are all physical properties जो हम observe कर सकते हैं। next we have chemical properties, internal changes of the substance which cannot be observed visually। मतलब ये Na रिएक्शन करके NaCl क्यों हो गया, यही है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी। मतलब इसके अंदर कुछ तो चल रहा था कि कुछ अनस्टेबिलिटी इसमें थी, दैट इज व्हाई इट रिएक्टेड एंड बिकेम सोडियम क्लोराइड। दिस इज व्हाट इज एक्सप्लेन्ड बाय द केमिकल प्रॉपर्टीज। अंदर क्या चल रहा है जिसकी वजह से ये रिएक्शन कर रहा है, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। डिस्क्राइब्स हाउ वन सब्सटेंस इंटरैक्ट्स विद अदर सब्सटेंसेस अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। मतलब सोडियम को हमने रख दिया यहाँ पे, क्लोरीन को रख दिया, ये दोनों आपस में कैसे इंटरेक्ट करेंगे, इनमें क्या अनस्टेबिलिटी है जो अगर वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करके उसको अगर वो कंप्लीट कर सके तो वो करेंगे। व्हाट इज दिस, दिस इज डिस्क्राइब्ड बाय द केमिकल प्रॉपर्टी, कि इनके अंदर केमिकली इनका क्या चल रहा है जो हम देख नहीं पा रहे। सोडियम सोडियम की तरह ही है, क्लोरीन क्लोरीन की तरह है, अचानक इन दोनों ने रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड बना दिया। व्हाई डिड दे रिएक्ट इज एक्सप्लेन्ड बाय केमिकल प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल फ्लेमेबिलिटी, मतलब कोई सब्सटेंस फ्लेमेबल है कि नहीं, मतलब वो फायर कैच करता है कि नहीं। जब तक आप उसके पास कुछ बर्निंग कुछ सब्सटेंस लेके नहीं जाओगे तब तक वो फायर कैच नहीं करेगा, वो अपने हिसाब से ही रहेगा। सपोज दिस इज अ फ्लेमेबल मटेरियल, इट इज जस्ट नॉर्मली देयर, आपको देख के समझ में नहीं आएगा कि ये फायर कैच कर सकता है। अगर आप इसके पास एक कुछ फायर का लेके जाओ, लाइक एक मैच स्टिक लेके जाओ, देन इट विल कैच फायर। बट जब ये अकेला था तब आपको देख के समझ में नहीं आएगा कि ये फायर कैच करेगा कि नहीं। तो दिस इज द केमिकल प्रॉपर्टी। So flammability, acidity, basicity, oxidizing and reducing properties are some of the important chemical properties of matter. So now we cannot measure the chemical properties,
केमिकल प्रॉपर्टीज को जानने के लिए हमको रिएक्शंस करने पड़ते हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम मेजर कर सकते हैं. सो द नेक्स्ट topic of discussion in this lesson will be the measurement of physical properties. ये सारे बहुत ही बेसिक डिस्कशंस हैं, but since it is in your syllabus, so I am discussing. So measurement of physical properties, हमको क्यों, पहली बात तो हम मेजर ही क्यों करेंगे? क्वांटिटेटिव मेजरमेंट फॉर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन. साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट वगैरह करने के लिए मेजरमेंट जरूरी है कि दोनों सब्सटेंसेस ही भारी है, लेकिन कौन ज्यादा भारी है आपको कैसे पता चलेगा? जब आप उसको मेजर करेंगे. मेजरमेंट करना जरूरी है. इट इज अ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट कि कितना क्वांटिटी में वो ज्यादा भारी है. 5 गुना ज्यादा भारी है, 10 गुना ज्यादा भारी है, कितना ज्यादा भारी है, दैट विल बी डन इफ यू मेजर. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर followed by appropriate units of the quantity which is being measured. अगर आप लेंथ मेजर कर रहे हो तो ऑब्वियसली यू विल मेजर इन मीटर, सेंटीमीटर और बिग डिस्टेंसेस किलोमीटर. अगर आप वेट मेजर कर रहे हो या फिर मास मेजर कर रहे हो तो ग्राम, किलोग्राम या फिर कुछ छोटा है तो मिलीग्राम. तो मतलब जो यूनिट है, जो क्वांटिटी आप मेजर कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग यूनिट्स भी आपको एडजस्ट करने होंगे. कॉमन स्टैंडर्ड सिस्टम इज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स व्हिच इज द एसआई यूनिट्स. We know about this. The common unit system that is used is the SI unit. So these are some physical quantities, उनके symbol, उनके SI unit का नाम और उनके SI unit का symbol. You know about length and meter, mass and kg, which is kilogram. Times, SI unit is not hours, it is second. Electric current का है ampere, temperature का है, thermodynamic temperature का है Kelvin. मतलब जो साइंटिफिक कैलकुलेशंस में हम केल्विन में कैलकुलेट करते हैं, हम डिग्री सेल्सियस या फिर फ़ारेनहाइट में नहीं करते. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मोल, जिसके बारे में हम बहुत ज्यादा पढ़ेंगे इस चैप्टर में. एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज कैंडेला. So these are some quantities, physical quantities and their SI units. SI units को adjust करने के लिए कुछ prefix use होता है. I think you already know about this, but still I have put this chart for your reference. So the most important ones are deca, hecto, kilo and mega. So giga sometimes you require in your calculations, but very rarely. Up till mega it is very important. And दूसरे साइड में है हमारा सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, pico and sometimes femto. They come for wavelength calculations. Usually nanometer is very important when you do calculations regarding any wavelength, which we will do in other chapters of atomic structure and all. बट फॉर रिमेम्बरेंस, उनको याद करने के लिए यहाँ पे आपको, अगर आप फेमटो तक याद रखेंगे देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. और यहाँ पे मेगा या फिर गीगा भी आप याद रख सकते हो, या फिर मेगा तक अगर आप याद रखोगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. So what is this basically? Basically 1 meter, it is लेंथ, किसी सब्सटेंस का लेंथ है, मान लीजिए 1 मीटर. नाउ इफ इट इज 1000 मीटर, इसको हम कहेंगे 1 किलोमीटर, which is 10 to the power 3 मीटर. सिमिलरली अगर इसके आप 1 मीटर के आप 1000 टुकड़े कर देंगे ऐसे करके, then it will be 1/1000. 1/1000 मीटर हो जाता है हमारा 1 मिलीमीटर, और विच इज 10 to the power -3 मीटर. So now if we look to the chart, यहाँ पे बीच में I'll draw a line. The line is not straight, sorry. So suppose कि यहाँ पे हमारा मीटर है, 1 मीटर, this is a 1 मीटर line. जब 10 मीटर हो जाता है उसको हम कहेंगे डेकामीटर. जब 100 मीटर हो जाएंगे उसको कहेंगे हम हेक्टोमीटर. जब 1000 मीटर हो जाएंगे उसको कहेंगे हम किलोमीटर. वैसे इट विल इंक्रीज. सिमिलरली अगर आप 1 मीटर के 10 टुकड़े कर देंगे, 1/10 मीटर जब हो जाएगा
तो 1/10, 10 को अगर आप ऊपर लेके आएंगे इट विल बी 10 - 1। 10 - 1 मीटर को हम कहेंगे 1 डेसीमीटर। 10 - 2 मीटर को कहेंगे हम 1 सेंटीमीटर। 10 - 3 मीटर को कहेंगे हम 1 मिलीमीटर एंड सो ऑन। सो फ्रॉम 1 मीटर वेन एवर यू आर मूविंग ऊपर या फिर नीचे, दिस इज टॉप एंड दिस इज बॉटम और अबव एंड बिलो, सो द यूनिट नेम विल चेंज। कि अगर 1 मीटर की जगह आपने 1000 मीटर ले लिया तो उसका नाम हो जाएगा 1 किलोमीटर। सो यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस, बट सम यूनिट्स यू मे नॉट नो। यहाँ पे आपको शायद माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो के बारे में नहीं पता है, तो यू कैन स्टडी दीज फॉर योर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, बिकॉज कभी बहुत छोटे लेंस ऐसे नैनोमीटर, माइक्रोमीटर में एक्सप्रेस किए जाते हैं, लेकिन सॉल्व करते टाइम आपको मीटर में उनको एक्सप्रेस करना होता है, तो तब आप इन रिलेशंस का यूज कर सकते हो। So now we will see about some important physical properties. हमारे जो 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज है किसी भी मैटर के लिए, एक है मास, वॉल्यूम, डेंसिटी एंड टेम्परेचर। सो लेट अस सी अबाउट द ईच फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो मास एंड वेट। मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। कि कितना मैटर है किसी चीज में, वही है उसका मास। बहुत कुछ भारी कोई चीज है तो उसमें उसका मैटर जो है, मैटर का अमाउंट ज्यादा होगा। कोई हल्का चीज है तो उसमें मैटर का अमाउंट होगा कम। सिमिलरली वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय ग्रेविटी। मास एंड वेट को हम सेम यूज कर लेते हैं आराम से। फिजिक्स में ये बहुत मायने रखता है कि आप मास बता रहे हैं या फिर वेट बता रहे हैं, लेकिन केमिस्ट्री में दे आर यूजुअली यूज्ड विद द सेम मोटिव। मास कभी भी मास बोलते हैं, कभी भी वेट बोलते हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। लेकिन फिजिक्स में अगर आप मास और वेट को सेम बना देंगे तो नंबर तो आपके गए। बेसिकली वेट इज मास इनटू ग्रेविटी। मतलब जो मास तो हमारा है ही, मास मतलब जितना मैटर है, उसके ऊपर ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स हो रहा है उसको मिला के हम कहते हैं हमारा वेट। तो वेट इज इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटी एंड वेट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन मास। क्योंकि ग्रेविटी जो है वो डिफर करता है। हमारे अर्थ में ग्रेविटी है, मून में आपको पता है ग्रेविटी कम है। तो जैसे कि अगर वेट किसी चीज का है, मान लीजिए 70 kg है, उसका मास कितना होगा? अगर हम यहाँ पे जी को ऑलमोस्ट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं, यूजुअली 9.8 होता है, बट फॉर कैलकुलेशन एग्जांपल आई एम टेकिंग 10। सिर्फ 7 kg है मास, मतलब मैटर उसमें 7 kg ही है, लेकिन जो ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स हो रहा है, इसकी वजह से वेइंग स्केल में जब हम रख रहे हैं उसको 70 kg आ रहा है। मतलब अभी आपको अगर आपके वेट को लेके कोई कुछ बोले तो आप उनको बताइएगा कि हमारा वेट यहाँ पे अर्थ में ज्यादा है, अगर हम किसी दूसरे प्लैनेट में चले जाएंगे तो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। साइंस वालों को शायद ये जोक समझ में आए, बट दोज हु हैव नॉट टेकन साइंस में नॉट लाइक दिस जोक एंड मे थिंक दैट यू आर क्रिंज, बट इट इज ओके। So basically what I want to convey is weight is always more than mass. वेट में ग्रेविटी का एक रोल है, मास में सिर्फ जितना मैटर है उतना ही उसका मास। एंड ऑब्वियसली 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम। इसको नहीं पता ये, अगर नहीं पता है तो अब पता आपको चल गया होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट मास एंड वेट। नेक्स्ट इज वॉल्यूम। इट इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस। कि एक सब्सटेंस को आप किसी कोने में रख दो तो कितना स्पेस वो लेकर बैठा है उसको कहते हैं हम वॉल्यूम। इसका यूनिट है लेंथ क्यूब। मतलब इसका एक हाइट रहता है, एक ब्रेथ रहता है और एक लेंथ रहता है। तो लेंथ के ही ये तीनों वैरायटीज है, तो इसलिए लेंथ क्यूब है इसका यूनिट। सबसे कॉमन जो यूनिट है वो है लीटर, मिलीलीटर। कितना लीटर पानी, कितना मिलीलीटर पानी। Also you can express it in decimeter cube or centimeter cube. So the relation is 1 liter is equals to 1000 milliliter, which is equals to 1 decimeter cube, which is equals to 100 centimeter cube. मतलब 1 liter is 1 decimeter cube and 1 milliliter is 1 centimeter cube basically. तो वॉल्यूम इज कितना
स्पेस कोई मैटर ऑक्यूपाई करके रखा है उसको कहते हैं हम वॉल्यूम। नाउ वी हैव डेंसिटी, इट इज द अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके वो कितना ज्यादा मास दे रहा है उसको कहते हैं हम डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मोर डेंसिटी इंडिकेट्स दैट पार्टिकल्स आर मोर क्लोजली पैक्ड। ये जो पार्टिकल्स है किसी भी मैटर के, एटम हो जाए मॉलिक्यूल्स हो जाए, वो जितना ज्यादा क्लोज रहेगा उस मटेरियल की डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। इसलिए गैसेस और लिक्विड की डेंसिटी बहुत कम होती है क्योंकि ये जो पार्टिकल है बहुत दूर दूर रहते हैं, इसलिए उनकी डेंसिटी बहुत कम होती है। लेकिन सॉलिड में ये पार्टिकल बहुत ज्यादा क्लोज रहते हैं, पैक्ड रहते हैं, इसलिए इनकी डेंसिटी भी बहुत ज्यादा होगी। SI यूनिट ऑफ डेंसिटी इज केजी मीटर, केजी पर मीटर क्यूब, यू कैन राइट इट लाइक दिस, केजी पर मीटर क्यूब। तो मास का SI यूनिट होता है केजी, वॉल्यूम को हम मीटर क्यूब में अगर लिखे तो इट विल बी केजी पर मीटर क्यूब, दिस इज द यूनिट। ये हमको याद रखना है कि जितना ज्यादा पार्टिकल क्लोजली पैक्ड रहेगा उसकी डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। एंड लास्टली हमारे टेम्परेचर, जिससे हमको पता चलता है कि कितना कुछ गर्म है या फिर कितना ठंडा है, हाउ हॉट और कोल्ड द सब्सटेंस इज। ये थोड़ा गर्म है, ये थोड़ा सा ठंडा है, कितना, ये जो मेजरमेंट है वही है टेम्परेचर। 3 यूनिट होते हैं, डिग्री सेल्सियस जो हम कॉमन यूज करते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट जो हम कॉमनली यूज करते हैं जब आपको बुखार आता है, तब आप जो टेम्परेचर देखते हो आप यूजुअली डिग्री फ़ारेनहाइट में देखते हो कि 100 बुखार है, 101 बुखार है, वो सब डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। एंड केल्विन विच इज फॉर द साइंटिफिक कैलकुलेशंस। तो यही है हमारे 3 मेन यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। SI यूनिट इज केल्विन, साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए केल्विन SI यूनिट है, लेकिन सबसे कॉमनली जो यूज है वो डिग्री सेल्सियस ही यूज करते हैं। कि आज का टेम्परेचर कितना है आपके स्टेट में, तो ये आपको डिग्री सेल्सियस में ही देखने को मिलेगा। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपैरिजन बिटवीन डिग्री सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे मैंने 3 थर्मोमीटर्स ले लिया है, एक है केल्विन में, एक है डिग्री सेल्सियस में, और ये हो गया हमारा डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जहां पे डिग्री सेल्सियस का 0 आता है वहां पे फ़ारेनहाइट है 32 फ़ारेनहाइट और केल्विन है 273 केल्विन, जो है हमारा वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, यहाँ पे आइस बनती है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, उसको फ़ारेनहाइट में एक्सप्रेस करेंगे तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 3110 केल्विन। And boiling point of water is 100 degrees Celsius, which is 212 Fahrenheit and 373 Kelvin. Negative temperatures are possible in Celsius and Fahrenheit, but not in Kelvin scale. क्योंकि जब केल्विन का 0 आता है तो सबसे ज्यादा नेगेटिव, इसको एब्सोल्यूट जीरो कहा जाता है, 0 केल्विन को, जिसका वैल्यू है -273 डिग्री सेल्सियस और -459 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका कुछ नेगेटिव नहीं होता, एब्सोल्यूट जीरो, तो इसके नीचे टेम्परेचर आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसको हम एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं। दिस इज -273 डिग्री सेल्सियस एंड -459 फ़ारेनहाइट। सो फॉर एक्सप्रेसिंग फ़ारेनहाइट इनटू डिग्री सेल्सियस, ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला। डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 into degree Celsius plus 32. So if you are given 5 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसका वैल्यू डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, इफ यू कैलकुलेट यू कैन यूज, और यू आर गिवन 5 डिग्री सेल्सियस, उसका फ़ारेनहाइट में कितना वैल्यू रहेगा, यू कैन यूज दिस रिलेशन एंड यू कैन कैलकुलेट। सिमिलरली केल्विन से डिग्री सेल्सियस के लिए 1 केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, मतलब डिग्री सेल्सियस का जो भी वैल्यू है, अगर 5 है तो उसके साथ अगर आप 273 सिंपली ऐड कर दे तो आपको केल्विन में मिल जाएगा 278 केल्विन टेम्परेचर। सिमिलरली 278 से अगर आप 273 माइनस कर दे तो आपको मिल जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये है केल्विन और सेल्सियस के बीच में एक इंपॉर्टेंट रिलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर थर्मोडायनेमिक कैलकुलेशन। थर्मोडायनेमिक में आपको हमेशा डिग्री सेल्सियस में आपको टेम्परेचर दिए जाएंगे, लेकिन आपको केल्विन में ही कैलकुलेशन करने होंगे। सो दिस इन रिलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों साइड में इंपॉर्टेंट लिख देती हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी आते हैं कि 5 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बताइए या फिर 10 फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बताइए, तो इस फॉर्मूला का आप यूज कर सकते हो. So this was all about mass, density, volume and temperature. चैप्टर खत्म हो गया तो कुछ सवाल भी देख लेते हैं. Now if you see, you can now answer all these questions because I have discussed everything in this lesson. गैस और वेपर का क्या सेम मीनिंग होता है? Now you know the answer. How can oil and water be separated? You know, by using separating funnel. नैनोमीटर्स को सेंटीमीटर में कैसे करते हैं? If you refer to that chart, you can easily calculate it. Similarly, माइक्रोमीटर को किलोमीटर में एक्सप्रेस करना. यहाँ पे 50 डिग्रीज को आप फ़ारेनहाइट और केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड 473 केल्विन को आप डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. First, you convert 473 Kelvin into degree Celsius and then you use the degree Celsius to find the Fahrenheit. तो अगर आपको कोई क्वेश्चन में केल्विन से डायरेक्टली फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट करना है तो आपको पहले डिग्री सेल्सियस को कैलकुलेट करना होगा and then it will be very easy for you. So the answer of all these questions you can very confidently and easily answer because I have discussed everything in this lesson. Thank you so much and thank you for being a part of today's lesson. This was our first lesson in some basic concepts in chemistry. बहुत ही बेसिक चीजें थी ये, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इन बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक टॉपिक से अगर हमको क्वेश्चंस मिलते हैं तो हम आंसर नहीं कर पाते हैं. So to clear all those doubts and all those little things, I have made this video to clear all your basic concepts. The chapter is some basic concepts in chemistry. तो सबसे जो basic concept है मैंने उसी से start किया है and I hope it is now very clear to you. I would like to request you all to join our World of Mentors Galaxy where you will get regular classes and interesting content on shorts and reels. And most importantly, we will host problem solving and doubt clearing sessions for you all. Please subscribe to our YouTube channel and follow our Instagram page for more updates. Thank you for being a part of Mentors Galaxy. If you haven't subscribed to our YouTube channel, I would like to request you to please subscribe to our YouTube channel for more such content. Thank you so much.